موجود ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، فرماتے ہیں کہ اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر تھے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں یعنی اسی وقت میں اسی کے درمیان میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ علیہ الرحمہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ آپ علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے سے آیا ہوں۔ شیخ صاحب نے یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں کہو، تب میں تمہیں مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح سے پڑھتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا، حضرت نے اسے بیعت فرما لیا۔ واقعہ یہاں تک آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت کل تک جو باطل فرقے ہیں یعنی دیوبندی، وہابی، تبلیغی، قادیانی، ان لوگوں کو گستاخ کہا کرتے تھے، لیکن ایسی گستاخیاں تو خود ان کے گھر میں موجود ہیں۔ ان کے بزرگ ایسے اس طرح کے جو ہے کلمات کہہ چکے ہیں، یا ان کے بزرگ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ اپنے بارگاہوں میں آنے والوں کو اپنے نام کے کلمے پڑھوایا کرتے تھے۔ یہاں تک آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی جا کر کتاب میں تحقیق تو کرنے والا نہیں ہے، ہر کوئی جا کر کتاب میں اصل واقعے کو پڑھ کر سیاق و سباق تو دیکھنے والا نہیں ہے۔ لوگ مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں اور بزرگان دین سے بدزن ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ناپاک کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، انجینئر صاحب آپ بھی کتاب کھول کر دیکھ لیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب آگے کی جو داستان ہے اور آگے کا جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں سے چھپایا جاتا ہے اور وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر وہ پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کی پول کھل جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ لہذا آگے کی گفتگو کو آپ سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ آگے فرماتے ہیں یعنی اس نے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس نے اسی طرح کہا، حضرت نے اسے بیعت فرما لیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا سن، میں نے تجھے یہ جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا، یعنی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو عقیدہ ختم نبوت میں کتنا مضبوط ہے، کہ تو اتنا تیرا عقیدہ مضبوط ہے کہ کوئی بھی اگر تجھے کلمہ میں تبدیلی کرنے کے لیے کہے تو تو اسے تبدیل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اپنے کلمے میں کسی اور کو شامل کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ صرف اور صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا۔ آگے ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سید حسین صاحب بول رہے ہیں؟ مشتاق علی بھائی، میں افو خان بول رہا ہوں، آج آپ سے بات ہوئی تھی دوپہر میں۔ افو خان بول رہے ہیں؟ جی افو خان ہے؟ جی جی بھائی، تھوڑا آپ کا ویڈیو ہم نے دیکھا تھا۔ جی ہاں ہاں تو وہی بھائی آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرے نام کا کلمہ پڑھیے آپ پہلے۔ جی ہے، دیکھیے میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا، حضرت تھوڑا بزی ہیں، آپ سے نا بعد میں کال کرتے ہیں۔ کہاں بزی ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ تو ایک منٹ کہیے، گاڑی روک لے میرے بھائی، بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ ہاں 2 منٹ بات کریں گے، 2 منٹ لائن پہ رہو، اگر آپ کو ارجنٹ ہے تو لائن پہ رہو 2 منٹ۔ ہاں ہاں میں لائن ہی پہ ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، لائن پہ رہیے۔
अब क्या है, अच्छे से क्लास लेंगे हजरत। सैयद हुसैन रिजवी साहब से बात कराइएगा। हाँ वही, आप हजरत 2 मिनट में अपना वक्त आपके लिए निकालेंगे, आपकी अच्छी सी क्लास लेंगे ना। जी 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 भाई। और जो आपने जुमला कहा था कि आपका कलमा पड़े, आपको है ना बहुत भारी पड़ेगा ये बोलना। नहीं, मुझे क्यों भारी पड़ेगा भाई? नहीं, क्योंकि आप है ना ऐसे ही जुमला बोल दिया है कि आपको खुद भी पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, बाद में फंसता है। नहीं, ये तो आपके जो शेख साहब हैं उन्होंने भाई अपने वीडियो में कहा था ना। हाँ भाई, कलमा हम लोगों का, इंसानों का थोड़ी ना होता कलमा, वो क्या लोगों का बनाया हुआ कलमा है, आपने जो तरह से बोला। हाँ हाँ नहीं तो फिर नहीं होता। हेलो, चलिए ठीक है, वो आ जाए तो उनसे बात कराइए। 1 मिनट सर, मेरे को बात करेंगे सर, बाद में डाल लेंगे। हेलो, बाद में डाल लेंगे, 1 मिनट सर। हाँ 1 मिनट दे रहा हूँ बस। अरे नहीं, ऐसे नहीं लगा गाड़ी सर, वेट कर रहा है हिसाब से। हाँ एक काम कर, मत सर मत डाल। अरे नको मोहम्मद, ये है मेरे को जाने का। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हदाकल्ला जी, बोलिए। हदाकल्ला, अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा। बोलिए। हाँ शेख, पहले तो आप मेरे भाई सबसे पहले मेरे नाम का कलमा पढ़िए। जी, उसके बाद पहले हम अकीदा आपका क्या बोल के देखेंगे कलमा कि आपका पढ़ूं? अकीदा ठीक है कि नहीं। उसके बाद आगे बात कलमा होगी। पढ़ूं? नहीं, जो आपने मतलब भाई अपने वीडियो में कहा था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, मेरे अकीदे को आजमाने के लिए ये तो मतलब चिश्ती ने जो मतलब कलमा मतलब पढ़ाया था अपने नाम का, वो अकीदे के लिए आजमाने के लिए अपने नाम का पढ़ाया था। तो ये आपके साथ से जायज है, या अपने ही तो आप मेरे नाम का भी पढ़ लो भाई। तुम मेरी बात सुनोगे या भोगते ही रहोगे? भाई मैं कोई कुत्ता थोड़ी ना हूँ जो भौंकूंगा। मेरी बात सुनना है तो बात सुनो, और जी अगर जी नहीं बताइए। सुनना है तो मुझे बात नहीं करना है। नहीं मेरे भाई, आपका वीडियो आया था कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। हाँ, मेरे बहुत से वीडियोस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, और ये वो मेरा चिश्ती वीडियो है, रसूल अल्लाह पे मैं आपका बात करने वीडियो के लिए है ना। इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तुम भौंक रहे हो एक साथ जो है, ये मेरे को पसंद नहीं है। अगर बात करना है उसूल के तहत और एकदम खामोशी से, भाई तो बदतमीजी तो आप कर रहे हैं भाई, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करो, तुम कौन सी जमात से ताल्लुक रखते हो? नजदी? अहले सुन्नत। अभी? हाँ, अहले सुन्नत। ये दावा नहीं, दलील के साथ बोलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 252 पे फरमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है, तो हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। आप अहले हदीस हो? अहले सुन्नत मेरे भाई। ठीक है, नहीं एक बात बताओ, तुमने अभी बोला कि अहले हदीस का नाम अहले सुन्नत है, ठीक है। हाँ तो भाई दोनों एक ही हैं, तो हम चाहे कोई भी नाम ले लें, उसमें दिक्कत क्या है? तुमने जो अभी दावा किया है, तुम्हें कितनी हदीस है? हम पहले ये बताओ। अहले सुन्नत वल जमात अच्छा, हदीस की असाबुल हदीस है। आप खुश? हदीस किसको बोलते हैं? हदीस किसको बोलते हैं? ये भाई मैंने उस टॉपिक पे नहीं, आपका जिस टॉपिक पे वीडियो आपने बना के अपलोड किया है, बात नहीं करना था, उस टॉपिक पे बात नहीं करना था, तो तुमने दावा क्यों किया कि मैं अहले हदीस हूँ? तो वो तो आपने पूछा, मैंने पहचान बताई ना आपको। ये भी तो मैं भी ये भी तो मैं ही पूछ मैंने रहा हूँ। आपसे पूछा कि आप कौन है, बरेलवी है, हयाती है, ममाती है, चिश्ती है, कादरी है, तौरवर्दी है? मैंने तो आपसे नहीं पूछा। ठीक है, तुम बात सही तरीके से नहीं कर रहे हो फोन का। वो तो हम जानते हैं, आप फोन काट के भाग जाओगे, क्योंकि चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ने वाले कभी साबित नहीं कर पाएंगे। बात सही तरीके से करोगे तो मैं तुम्हें तो और कैसे करूँ मेरे भाई, गाना गा के बात कर रहा हूँ क्या मैं आपसे? बोल रहा हूँ तो तुम खामोश रहो। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है? जानवरों से उठ के आए हो। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा। बात करता है सामने वाला, जब बात 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक? 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा, वो छोड़ो। एक काम करो, अगर तुम इस उसूल के तहत बात कर रहे हो ना, अरे मेरे भाई काम ये करो कि आपने किसी हदीस मौलवी को इधर भेजो ना। मैंने किस काम के लिए फोन किया आपको मालूम है? डरते क्यों है सामने आने से? क्यों? फिर मेरे भाई जिन आपका जाग गया, अल्लाह के बंदे, क्यों मेरे भाई जबरदस्ती आप टॉपिक पे क्यों नहीं आने दे रहे हो? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके खबीस मौलवी, मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है मेरे भाई, मैंने काम के लिए फोन किया, वो काम तो सुन लीजिए। तो मैं फोन पे बात, फिर आप आराम से बोलिएगा, हम आपको पूरा मौका देंगे, आप बोलते जाइएगा, रात भर बोलिएगा, इंशाल्लाह हम फोन काटेंगे नहीं। ये वही बात कर रहे हैं आप।
تو سن تو لیجیے، میں نے کس کام کے لیے فون کیا ہے میرے بھائی؟ میں آپ کے کام کو سمجھ گیا جو بھی ہے، میں فون پر بات کر رہا ہوں. آپ سمجھ گئے، علم غیب بھی آپ کو ہو گیا. میں فون پر بات کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، مجھے میں کیا بول رہا ہوں. آپ سن تو لیجیے میرا کام کیا ہے. آپ کا سامنے ایک ویڈیو میں نے دیکھا کل کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ نے جواب دیا کہ یہ لوگ آدھی بات پیش کرتے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں لوگ آدھی بات پیش کرتے ہیں اور پوری بات بھائی ویڈیو میں آپ نے پیش کی. ایک آدمی خواجہ معین الدین چشتی کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آپ کا مرید بنا لو. تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. تو انہوں نے اس کو چشتی رسول اللہ ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے اس مرود کی ارے سن تو لو. اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے اس کی بیعت کو قبول کر لیا اور اس کو اپنا مرید بنا دیا. اب اس کے آگے آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ اس کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے پڑھایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے کہ نہیں. تو یہ عقیدہ چیک کرنے کے لیے یہ اصول جو لائے ہیں کیا یہ اصول صحیح ہے؟ میرا سوال یہ ہے بھائی، کسی کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے کسی کو اپنے نام کا کلمہ پڑھانا کیا یہ اصول صحیح ہے؟ آپ نے ویڈیو میں اتنا بڑا دجل دیا، اتنا بڑا دھوکہ دیا. میرے ویڈیو کا آپ کو شرم نہیں آتی میرے بھائی امت کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ مطلب خواجہ معین الدین چشتی کو آپ بچاتے آپ خود آپ نے کفر کر دیا. سنو پہلے کلمہ پڑھو ایک صحیح طریقے سے. کلمہ مطلب جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ ہے اسلامی کلمہ. یہ اسلامی نہیں، یہ تو بریلوی کلمہ ہے میرے بھائی. فوائد فریدیہ پیج نمبر 83. اور آپ نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ اس کلمے کے بعد انہوں نے اس کی بیعت کر لی اور بعد میں اس سے کہا کہ میں نے تمہارا عقیدہ چیک کرنے کے لیے کلمہ پڑھایا تھا، اس کو تم اصلیت نہ ماننا. کلمہ ہمارا وہی پرانا والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا. محمد الرسول. بھائی تم عربی کی ماں بہن ایک نہ کرو. نہیں ابھی تم سے عربی میں پوچھیں گے، ابھی بھاگ جاؤ گے. کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں چل بتا. کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں چل بتا. اچھا الف کو الف کیوں کہتے ہیں چل بتا. با کو با کیوں کہتے ہیں چل بتا. بہت بار تو عربی کا اسکالر بن رہا ہے نا بھائی. میرا موڈ نہ خراب کرو ورنہ میں پوری بریلیت کی ابھی میں پوری بھائی ایک ایک باتیں کھول دوں گا. ہاں یہی تمہاری بات ہے. ابھی جو تم کہہ رہے تھے نا بھوکرو تمہارا اعلیٰ حضرت انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ فتویٰ دیتا ہے کہ میں بھی کتا ہوں، میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. تو تم لوگ کتے ہوئے نا، بھونکنا تم لوگ کا کام ہے. آپ کتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کتوں سے تو یہ بتاؤ کتا اگر کنویں میں گر جائے تو پانی پاکے کہ نہ پاکے یہ بتاؤ. اعلیٰ حضرت رستے میں جا رہا ہے اور اعلیٰ حضرت اگر کنویں میں گر جائے تو وہ پانی پاکے کہ نہ پاکے چل بتا. اور ہمت ہو تو سامنے آ کر بات کرو. آج یہ سب مغالطے دینا شروع، اب فون کاٹ کے تو بھاگ جائے گا. اگر بھائی ویڈیو میں لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو میرے بھائی. یا حق پر ہونے اگر ویڈیو میں لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو. ہم پھر کہہ رہے ہیں تمہیں تم خود جانتے ہو یہ کلمہ غلط ہے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ غلط ہے. یہ کسی بھی کنڈیشن میں اس کو نہیں پڑھانا چاہیے تھا، نہ ہی عقیدہ چیک کرنے کے لیے، نہ ہی اس کو صحیح بتانے کے لیے، نہ ہی اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے. یہ جملہ ہی کفر ہے. بات کرو نا اصول سے، کیوں ڈر رہے ہو؟ ویڈیو میں اچھا کون تھا؟ ویڈیو میں تم ہی تھے نا. سنو میری بات تمہیں کو جو ہے جو بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے. اگر وہ بھائی ویڈیو میں آپ ہی تھے نا تو بات کریں گے سامنے روبرو بیٹھ. مشتاق علی آپ ہی کا نام ہے نا؟ سید حسین رضوی. ارے سید حسین رضوی آپ ہی کا نام ہے نا؟ میں کیا بول رہا ہوں تمہارے کسی مولوی میں اگر ہمت ہو. ارے میرے میں ہمت ہے نا، بات کرو نا. مغالطہ کیوں دے رہے ہو؟ سامنے آگے بات کرنا. ابے سامنے تو بات کر رہا ہوں. کون سا میں بھائی میں تیرے پیٹ پیچھے بات کر رہا ہوں؟ تیرے سے سامنے بات کر رہا ہوں، منہ در منہ. چل بولنا. ارے وہاں کونے میں ڈر گیا بریلوی بدتی ڈر گیا. مغالطے دینے لگا، بول بچن کرنے لگا. سامنے آؤ، گھر پہ آؤ، نہا کے آؤ، دھو کے آؤ، صابن لگاؤ، شیمپو لگاؤ. بس بہانے بازی کو آیا. بھائی جب دم نہیں ہے تو کیوں میرے بھائی دفاع کرتے ہو یار؟
खाली वीडियो डालने का टाइम है, बात करने का टाइम नहीं है। लोगों को चूतिया बेवकूफ बनाने का टाइम है बस। यार तुम्हारी हकीकत यार एक चीज बताइए आप, एक आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आ रहा है, वो कह रहा है मुझे आपका मुरीद बनना है, और चिश्ती रसूलुल्लाह ये अपने नाम का कलमा पढ़ाई दे रहे हैं, माज़अल्लाह तौबा तौबा तौबा, और बाद में कह रहे हैं ये मैंने तुम्हारा अकीदा चेक करने के लिए पढ़ाया। तो ये मेरे भाई ये अकीदा चेक करने का पैमाना ये कहाँ चला है? कलिमा क्या है ये बोलो पहले, कौन सा कलिमा पढ़ाए थे? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तुम्हारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने मुरीद को पढ़ाया था, उसका अकीदा चेक करने के लिए आपके हिसाब से। तो अकीदा चेक करने के लिए भी ऐसे जुमले अदा करना, क्या ये भाई ये जायज है? आप बताइए, आप बताइए। हाँ बोलिए। अरे बोलिए ना, वीडियो में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपने। वो कलिमे के ताल्लुक से जो रसूलुल्लाह जो लफ्ज है ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुब्तदा है, खबर है, क्या है? मुजाफ मुजाफ नबूवत का दावा है, खबर है, मफूल बिही है, मफूल मेरे भाई नबूवत का दावा है। अल्लाह के नबी के नाम को हटा के अपना नाम डाल देना, ये नबूवत पे डाका डालना है। जुमला है, जुमला अरे नबूवत पे डाका डालना है। तुम अब इधर इधर भागो मत, जल्दी बताओ कौन सा ये जो कलमा ये पढ़ाया अकीदा चेक करने के लिए, क्या ये सही था? कौन सा? तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह है, कौन सा जुमला है? जुमला खबरिया है, इंशाइया है? भाई ये कुफरिया जुमला है, नबूवत पे डाका डालना है। नबूवत के जो एक्चुअल जो उसके भाई वो हकदार है उनको हटा के अपने आप को हकदार बनाना है। तो ये सामने आके क्यों नहीं बोलते तुम लोग? अबे तो सामने तो बोल रहे हैं, हम कब पीठ पीछे बोल रहे, जाहिल आदमी। तो और कितना सामने आ रहे? फिर भाई क्या तुम्हारी गोद में बैठ के तुमको बताएं? बैठकर फोन पे बैठकर बात करो भाई, तुम्हारी गोद में बैठ के तुमको बताएंगे तब मानोगे? फोन पे बात नहीं करते हो? तो ये कौन सा तुम्हारे आला हज़रत ने मना किया है कि भाई पहले हदीसों से फोन पे बात ना करना। भाई आपके आला हज़रत ने आपको मना किया है कि फोन पे बात ना करना। दलवी ने मना किया है क्या कि जो आपके हनफी मसलक में क्या ये हनफी फिका में लिखा हुआ है किसी से मोबाइल पे बात ना करना? तुम्हारे हकाइक जो है सामने आ जाएंगे। भाई हम तो सब जगह बात करते हैं, आ जाओ, दम है इलाहाबाद, आ जाओ, फेस टू फेस बात कर लेते हैं, आओ ना। घबरा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? मौलवी को बोलो सामने आकर। तुम अपने अल्लामाओं को जो कब्रों के अंदर मर के मिट्टी में मिल गए हैं उनको जाके कब्र से खींच के ले आओ और उनसे कहो कि कलमा साबित करे, किसी भी सूरत में इस कलमे को जायज साबित कर दे। ठीक है, अगर तुम्हारे को इसी तरीके से बात करना है तो मैं बात नहीं करूँगा। इस तरीके से क्या मेरे भाई, मुगलता तुम दे रहे हो तो मुगालते वालों को तो मैं ऐसे जवाब देता हूँ। मैं रूबरू भागोगे तुम फोन काट के, तुम्हारे दम नहीं है वीडियो डालने का, वीडियो डालने का दम है। ये पूछ रहा हूँ, तेरी औकात नहीं है जवाब देने की। भाई तुम्हारी इल्मी औकात नहीं है, मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, जो इजमा को ना माने वो काफिर है और तुम काफिर साबित हो गए हो। पहले तो मेरे भाई कलमा बदल दिया, कलमा बदलने के बाद तुमने उसका दिफा भी किया, अब तुम्हारे दिफा का मैंने सत्यानाश कर दिया तो तुम बौखला गए हो। अब कह रहे हो सामने आओ, ये करो वो करो। भाई ये सब मुगालते। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो बोलिए। अस्सलाम कब्ल कलाम, कलाम से पहले सलाम। अरे भाई सलाम का जवाब नहीं देता, तेरे को मालूम रख के तू सलाम करता है, कितना बेवकूफ है। तो भाई सलाम का जवाब क्यों नहीं देते? चिढ़ है क्या आपको सलाम से? मुसलमान होता तो मैं जवाब देता, मुसलमान का जवाब हम। तो भाई मुसलमान हूँ तभी तो सलाम किया आपको मेरे भाई। काफिर का जवाब हम थोड़ी देंगे। अच्छा आप काफिर हो, चलो तौबा तौबा तौबा। भाई मैं अपना सलाम वापस लेता हूँ, काफिरों वाला सलाम आपको कर देता हूँ। अस्सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। इसका मतलब क्या होता? भाई ये एक कंडीशनल सलाम है और इसका माना होता है कि सलामती हो उन पर जो हिदायत लाए हों। तो अगर आप हिदायत लाए होंगे तो आप पे सलामती होगी, वरना आप पे नहीं होगी। तो क्या जान के सलाम किया पहले? भाई पहले तो अपना दीनी भाई समझ के भाई आपको फोन किया था, तो लेकिन जब देखा कि आप काफिर हैं तो मेरे भाई मैंने कहा छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हक की दलील यही हुई, तूने मुझे दीनी भाई समझा, मैंने तुझे दीनी। तो भाई मैं तो सबको अपना दीनी भाई मानता हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है ना कि वो आस्तीन का सांप है। यही तो हक की दलील हो गई। अरे अहमद रजा साहब आपके पास है क्या? मतलब खाली आपके पास
मतलब दूसरों की बात को अपनी दलील आप बना लेते हैं। हद है मेरे भाई, आपके पास अपना कुछ अरे नहीं यार है। जान लेंगी पब्लिक। अभी रिकॉर्डिंग करना है मेरा फोन, रिकॉर्डिंग करना। मेरी रिकॉर्डिंग कभी नहीं डाल रहा है तू, खुद के रिकॉर्डिंग डाल रहा है ग्रुप में। अच्छा भाई, मेरे नाम का आप कलमा पढ़िए। क्यों पढ़ूंगा? तू काफिर है। मैं तो ला अफ्फू इलाहा खान के नाम का इल्लल्लाह कलमा पढ़िए जरा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, अफ्फू खान के नाम का कलमा पढ़िए। मैं क्या कह रहा हूँ? बेवकूफ, अपने नाम का कलमा पढ़ाने वाले काफिर, जरा शर्म कर। अरे तो पढ़िए ना लानत हो मेरे तुझ भाई। पर अल्लाह। अहमद ला- अहमद लानत रजा हो, साहब। लानत, लानत हो, लानत। हाँ, तो एक आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और कहा मुझे आपका मुरीद बना लो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। तो अब क्या आप इनके लिखने ऊपर वाले भी का लालच नाम, करेंगे? लिखने वाले का नाम। फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। एक अबे आदमी लिखने ख्वाजा वाले का मोइनुद्दीन नाम चिश्ती के तो पास बता। आया और कहा मुझे अपना मुरीद बना लो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो अरे उन्होंने लिखने वाले उसकी का बात को नाम तो कबूल बता, कर लिया लिखने वाले का नाम। और लिखने आगे वाले का नाम, किताब का नाम नहीं फरमाते पूछा हैं कि ये मैंने किताब का इसलिए। नाम नहीं पूछा, लिखने वाले अरे का नाम सुन तो पूछा। लो, किताब का सुन तो नाम लो, नहीं पूछा, बड़बड़ाओ मत, लिखने वाले बड़बड़ाओ का मत, नाम सुन बता। तो लो मेरे भाई। लिखने वाले का नाम बता, अरे लिखने सुन वाले तो का लो, नाम सब बता। बता रहा हूँ, किताब सुनो तो। तू बता कि लिखने वाले का नाम। बोलने दोगे? अब तो लिखने वाले का नाम बता, लिखने वाले का। अभी अरे सुन तो लो, सब बता रहा हूँ मेरे भाई, लिखने बोलने वाले का दोगे? नाम बता। जिन तूने जाग गया, लिखा जिन उसका जाग नाम गया, बता। अब बोलने नहीं देगा हाँ? अपने आगे। नहीं, जिसका लिखने भाई मैं बता रहा हूँ, लिखा सुन उसका तो नाम बता। लीजिए। अहमद रजा नहीं, टीटीए साहब, प्लीज जो जो कंट्रोल लिखा, योरसेल्फ, जिसका मुझे सब की कंट्रोल जरूरत नहीं है। योरसेल्फ वो प्लीज। किताब लिखने वाले का नाम चाहिए। साइलेंट प्लीज, प्लीज लिखने वाले का नाम। ब्रदर, प्लीज किसी बात साइलेंट, करने नहीं दूंगा। लिखने वाले का नाम कीप बना क्वाइट मुझे। ब्रदर, कीप क्वाइट प्लीज। अबे इंग्लिश के लौड़े को लिसन पैदा होने लिसन। वाले, हम इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश के लौड़े को पैदा नहीं हुए। भाई आपके आला हजरत ने कहा है कि अंग्रेजी वहाबियों पैदाइश का नहीं रद्द है, करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुसलमान अंग्रेजी पैदाइश है। तालीम हासिल की जाए तो भी दुरुस्त है। नहीं। अच्छा भाई, हम ये कह रहे हैं कि अभी मैंने आपसे कहा था कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो, तो आप नाराज हो गए, मेरे ऊपर लालतान करने लगे। तो चिश्ती साहब ने जो आपके अपने नाम का कलमा पढ़वाया और उसके बाद कहा कि ये कलमा तो मैंने इसलिए पढ़ाया है कि मैं तुम्हारा अकीदा देख लूं, अकीदा तुम्हारा जांच लूं कि तुम्हारा अकीदा ठीक है कि नहीं। तो आपने इनके ऊपर लालतान क्यों नहीं किया? मुझे किताब लिखने वाले का नाम नहीं बता रहा है। वो सब तुम छोड़ो, तुम उस किताब तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तुमको अलिफ बा ता सा नहीं आता है, अलिफ जबर आ बा जबर पा नहीं आता है, अलिफ जेर ई बा जेर बी नहीं आता है, अलिफ पेश ऊ बा पेश बू नहीं आता है, हलक से बोलो खा खा। तुम्हें कुछ नहीं आता है तो तुम किताब का नाम, राइटर, कौन छापीस, कौन लिखीस, कितने पन्ने हैं, कितने पेज हैं, तुमको उससे क्या लेना देना? कितना वो बेवकूफ है तू। कितना बेवकूफ है रे तू। मैंने तुझसे अपना कलमा पढ़ने के लिए कहा तो तू नाराज हो गया, भड़क गया और तुम्हारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने नाम का कलमा पढ़वा के बैत करवा ली और उसके बाद कहा कि इस कलमा को ना पढ़ना, ये तो मैं तुम्हारे अकीदे का टेस्ट कर रहा था। ये कौन सा अकीदा टेस्ट करने का तरीका है? ये अकीदा टेस्ट करने का कौन सा तरीका है भाई? का नाम नहीं बता सक रहा है, लिखने वाले का नाम नहीं बता सक रहा है। हद हो गई भाई। फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83, लिखने वाले बरेलवी, छापने वाले बरेलवी, पढ़ने वाले बरेलवी, पढ़ाने वाले बरेलवी और तुम भी बरेलवी। बरेलवी बिदती होता है। असल गुस्ताख कौन है मेरे भाई, आप बताओ। नबी का कलमा भी पसंद नहीं आ रहा है। मतलब भाई, किसी का अकीदा चेक करने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़ाना, ये कहाँ का उसूल है भाई? क्या सहाबा ने किसी मुनाफिक का ईमान चेक करने के लिए क्या उनको अपने नाम का कलमा पढ़ाया है? नए नए तरीके दीन में जात करते हो मेरे भाई तुम लोग। जुमा की नमाज में पहली अज़ान दिलाकर
अहमद, खुद अरे जिक्र भाई करता अहमद है। रजा टिटिया साहब, मेरे नाम का कलमा ये पढ़िए, सदर मुझे के आपका साथ ईमान चेक पढ़कर, करना है। हाँ, खुद मेरे ही नाम का जिक्र कलमा करता है, पढ़िए, मुझे आपका कुरान ईमान चेक करना बेसबर से है पढ़कर। कि आप आखिरी नबी को आखिरी मानते हैं या आपका अकीदा ये है कि कोई और भी नबी आ सकता है। तो तू मेरा अकीदा क्या जाने, जो काफिर को मैं क्या बताऊं, जो फिर वही काफिर हो। चीज, मेरे नाम का कलमा पढ़िए ना। आप आपके अकीदे का हम टेस्ट कर रहे हैं। कौन? तू तो काफिर है, मुसलमान होता तो मैं बोलता था तुझे। अच्छा, मतलब मुसलमान होते तो उसके नाम का कलमा पढ़ लेते। माज़ल्लाह, तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा पढ़ लेता। भाई खत्मे मैंने कहा नबूवत का इनकार कर दिया तुमने। तौबा तौबा, कितने मतलब गंदे अकायदे हैं तुम्हारे। मैंने कहा पढ़ लेता। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए भाई, मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा था कि मेरे नाम का कलमा पढ़िए, ठीक है। मेरा कोई मकसद नहीं था आपको अपने नाम का कलमा पढ़ाने के लिए। मैं आपको एहसास कराना चाह रहा था, आईना दिखाना चाह रहा था कि आपके जो पीर वली थे उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वा दिया और बाद में उसकी बैत कबूल कर ली, और बैत कबूल करने के बाद कहा कि इस कलमे को मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि मैं तुम्हारा अकीदा जांच लूं कि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त है या नहीं। तो भाई अकीदा जांचने का ये पैमाना गलत है, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का हो। ठीक, हम किसी के अकीदे की इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन अकीदे को जांचने के लिए कोई शिरकिया कुफरिया कलिमात का अदा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, यही आपको समझाना था। उम्मीद है आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमारा कलमा एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, यही कलमा था, यही था, कयामत तक रहेगा। तो किसी का भी अकीदा चेक करने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़वाना ये गलत है, गलत है, गलत है, ये गुमराही है। ठीक, जिन लोगों से ऐसी गलती हो गई है अल्लाह सुब्हानो तआला उनको माफ करे। बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, सुन्नी लहबी सलाम अलैका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जकरिया साहब बोल रहे हैं? नहीं भाई, मैं उनके छोटे भाई बोल रहा हूँ, तो अभी तक सो रहे। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? हाँ, आपका नाम क्या है? कादिर भाई। कादिर। आप कौन? कादिर भाई। भाई मैं अफू खान बोल रहा हूँ, जकरिया साहब का दोस्त। आप कौन है भाई? बरेलवी हैं आप? क्या करने का भाई? नहीं, अकीदा आपका चेक करना है। हाँ, बरेली हूँ भाई। बरेलवी है तो कलमा पढ़िए अफू खान के नाम का। काय के लिए पढ़ूं? आपका अकीदा चेक करना है ना हमें। काय के लिए पढ़ूं? अरे अकीदा चेक करना है आपका। अफू खान के नाम का कलमा पढ़िए। काय के लिए पढ़ूं? तुम्हारा कौन सा कलमा, जरा बताओ तो सही। नहीं, मतलब अल्लाह के नबी का नाम हटा के अफू खान का नाम लीजिए। काय के लिए? भाई तभी तो आपके अकीदे की जांच होगी। नहीं, जब हम अल्लाह को मानते हैं तुम्हारा कलमा क्यों पढ़े? नहीं, अकीदा चेक करवाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नबी हूँ, अकीदा चेक करवाने के लिए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, असल में बात ये है ना कि एक आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और कहा कि मुझे अपना मुरीद बना लो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह माज़ल्लाह। तो ये फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83 पे उतरा हुआ है। और ये उन्होंने इसलिए पढ़वाया था कि वो मतलब भाई वो मुरीद का अकीदा जान ले कि वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है कि नहीं। नहीं भाई, हम तो मानते हैं। तो मानते हो तो यही तो चेक करने के लिए मैंने कहा था। तो आपने पढ़ा ही नहीं ना, लेकिन उस मुरीद ने तो पढ़ लिया था। मैं तो ऐसा सब कहीं नहीं सुना। अरे मेरे भाई, आपके जो बरेलवी आलिम हैं वो सब मेरे भाई पूरा यूट्यूब के ऊपर बयान डाले हुए हैं
कि वो मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, उन्होंने उनके पास एक मुरीद आए और कहा कि मुझे मुरीद बना लो, तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरे मुरीद हो। फिर आगे लिखते हैं कि ये जो कलमा है ये मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि मैं तुम्हारा अकीदा जांच लूं कि तुम अल्लाह के नबी को खात्मे नबुवत पे मानते हो कि नहीं, उनको आखिरी नबी मानते हो कि नहीं। आप लोग वसीला क्यों नहीं लेते? तो ये उन्होंने अकीदा चेक करने के लिए सवाल पूछा था, तो मैंने सोचा मैं भी आपको अपना नाम का कलमा पढ़वा के अकीदा एक बार चेक कर लूं। हालांकि मेरा भी तरीका गलत है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का भी भाई ये तरीका अकीदा चेक करने का भाई ये गलत था, क्योंकि अपने नाम का कलमा पढ़ा के शिरकिया कुफरिया अल्फाज अदा करके किसी का अकीदे चेक करने का पैमाना इस दीन इस्लाम में नहीं है। एक टॉपिक, एक सवाल। हाँ, आप लोग कहते हो कि ये अगर कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके ऊपर ना सलाम जायज है ना कुछ जायज है ना, ना उस पर सलाम पढ़ सकते हो ना उस पर कुरान बख्श सकते हो ना। क्यों नहीं, सलाम पढ़ सकते हैं। कब्रिस्तान जाते हैं तो उसका एक सलाम है, अस्सलाम वालेकुम ए अहले कबूर, यानी कि ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। ये सलाम एक बामाना दुआ है, लेकिन उसको ये ना समझिए कि मुर्दा सलाम सुन रहा है उसका जवाब देगा कब्र के अंदर से। तो फिर सलाम काहे किया? वो दुआ है ना, बता तो दिया। नहीं, सलाम भी नहीं करना चाहिए, वो दुआ है। सुनो, हेलो। नहीं, आप अगर अपनी अम्मी के लिए पीठ पीछे दुआ करते हैं तो जरूरी है कि आपकी अम्मी सुने। आप दुआ किससे कर रहे हैं? अल्लाह से। भाई अल्लाह से कर रहे हैं ना भाई। दुआ के अल्फाज हैं ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो, तो सलामती कौन करेगा कब्र वालों पे? अल्लाह सुब्हानो तआला। तो अल्लाह सुन रहा है ना, कब्र वाले सुने चाहे ना सुने। अच्छा ये बताइए, अभी हमको अच्छा ठीक है, आपको बाद में बात करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। भाग रहे क्यों? अब बताओ। अच्छा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जो इस ऑडियो का टॉपिक था भाई वो ये था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अपने नाम का भाई कलमा पढ़वा के लोगों का अकीदा और ईमान चेक करते थे, ये तरीका मतलब गलत था, ठीक है। अब मैं फिर से आपको फोन करता हूँ तो मैं आपको इंशाल्लाह आपके हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब देता हूँ, ठीक है। पूरी बात। और भाई ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले जो कलमा था ये भी आप ना पढ़िएगा और मेरे नाम का भी कलमा ना पढ़िएगा, मुझे गुनाहगार ना बनाइएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है कौन बोल रहा है? फूला की चड्डी वाला बात कर रहा, क्या पूछ रहा हूँ? भाई आवाज समझ में नहीं है, कहाँ से बोल रहे हैं? भाई तू फूला की चड्डी वाला बात कर रहा, क्या पूछ रहा हूँ? क्या पूरा का बड्डी? फूला की चड्डी फ्लावर जाता है ना, फ्लावर। कौन बोल रहे हो? मोगली बोल रहे हो? जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए। फूल खिलाए, मेरा जज्बानी का नीचे का रंड खिलाए। भाई आपकी चड्डी के अंदर फूल खिला है या चड्डी पहन के फूल खिलाया? खिला है। भाई देखिए तौसीफ रजा साहब, थोड़ा बदतमीजी करना छोड़ दीजिए, ठीक है। और टॉपिक क्या? हेलो, अरे बोलोगे? टॉपिक क्या लोगों को मेरे नाम का कलमा पढ़ बोल रहा है कहते तू? क्या चीज? लोगों को फोन करके मेरे नाम का कलमा पढ़ो बोल के बोल रहा है कहते तू? सही क्या? अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा भौतान मान दिया तुमने। भूतान कहाँ मानते बे? तू बोल भाई ये तो आपके एक अल्लामा है, उन्होंने यूट्यूब पे मतलब वीडियो डाला था और उन्होंने कहा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो अपने नाम का कलमा पढ़ाया था ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, वो इसलिए पढ़ाया था ताकि वो उसका अकीदा मतलब भाई चेक कर ले। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-4 बरीतियों से उनसे कहता हूँ कि भाई मेरे नाम का कलमा पढ़ो, देखें वो पढ़ते हैं कि नहीं, और क्या ये पैमाना सही है कि किसी को अपने नाम का कलमा पढ़वा के उसका अकीदा जांचना। तो ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा था
माशाल्लाह, मैं क्यों अपने नाम का कलमा भाई मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं तो एकदम दीन का छोटा सा दाई हूँ मेरे भाई, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे चलने वाला। बोल के फिर मैं परेशान हो गया, कहीं नबूवत मिली क्या भाई इसको बोल के। ना भैया, नबूवत का दावा हम नहीं करते हैं, ना ही नबूवत पे डाका हम डालते हैं। ये तो कुछ जाहिल लोग हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कलमा पढ़ाया, इसकी वजह क्या थी, वजह क्या थी। वजह इसकी ये थी कि वो अपने मुरीद का अकीदा चेक करना चाह रहे थे कि हाँ वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानता है कि नहीं। तो मैंने सोचा यार अकीदा चेक करने का ये पैमाना आप लोग मतलब भाई सही मानते हो? आप लोग के नजदीक जो ये जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, ये कोई मतलब भाई कुफ्र तो है नहीं। तो मैंने कहा लो जरा आप लोग को आपके जो माइंड की समझ है उसके हिसाब से समझाते हैं। तो मैंने आपके दोस्तों को फोन किया और मैंने कहा कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो, देखें क्या वाकई तुम्हारा अकीदा सही है कि नहीं। तो खुद करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। किसी का नाम नहीं, खुद करो तो भाई रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? क्या भाई आपके फवाइदे फरीदिया में आया हुआ है कि एक शख्स मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के पास आया और उनसे कहा कि मुझे अपना मुरीद बना लो। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह। तो उसने पढ़ दिया और उन्होंने उसको अपना मुरीद बना लिया। तो यहाँ तक बात थी। लेकिन अब आप लोग कहते हो कि नहीं, इसके आगे जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने उस अपने मुरीद का अकीदा चेक करने के लिए उसको कलमा पढ़ाया। तो अकीदा चेक करने के लिए अगर कोई अपना कलमा पढ़ा रहा है तो आप लोग के साथ सही है वो? उसकी बाद वाली इबारत तो पढ़ाएगा। हाँ, वो तो आपके जो एक मतलब झोला छाप अल्लामा बनते हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि उन्होंने आगे लिखा है जो लोग बताते नहीं है, छुपाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि भाई वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने नाम का कलमा इसलिए पढ़ाया ताकि वो अपने मुरीद का अकीदा चेक कर लें कि अकीदा उसका कितना मजबूत है और कितना कमजोर है। तो अकीदा चेक करने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़ाना, क्या ये सहाबा ने कभी ऐसा किया? क्या ताबई ने ऐसा किया? या तबे ताबई ने ऐसा किया? या चारों अइमा ने ऐसा किया? दुनिया में कौन से इंसान ने ऐसा किया है कि लोगों का अकीदा चेक कराने के लिए अल्लाह के नबी के नाम को हटा के अपने नाम का कलमा पढ़ा दे? हम भी नहीं किया सब। अगर मान के चलता है तो भाई देखिए, मैंने अपने नाम का कलमा पढ़ने के लिए मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि मेरे नाम का कलमा पढ़ो, मुझे तुम्हारा अकीदा चेक करना है ताकि सामने वाले के बात समझ में आ जाए कि अल्लाह के नबी के अलावा किसी गैर नबी के नाम का कलमा हमको नहीं पढ़ना है, चाहे वो अकीदे का टेस्ट हो, चाहे हम अकीदे में फेल हो या पास हो। कुफरिया जुमला हमको अपनी जबान से नहीं निकालना है। क्या इबारत है वो पढ़ा क्या? उसके बाद अरे आपने पढ़ा क्या मेरे भाई? आप खुद पढ़ लिख के आते नहीं हो, दूसरों को बेवकूफ बनाते हो। अरे यार तेरी तो मैं परसों पूरी भाई अभी हम 2-3 लोगों को और फोन करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई मेरे नाम का कलमा पढ़ो। देखिए आप मतलब कौन कौन तैयार होता है अपना अकीदे का टच देने। बात बोलता हूँ, सुन तो मुसलमान है ना? मुसलमान नहीं है, हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा एक ही कलमा है जो इंशाअल्लाह क़यामत तक एक ही रहेगा। लेकिन अब बीच में लोग आके अपने नाम का कलमा पढ़वा के लोगों का अकीदा टेस्ट करने लगे। भाई ये कोई इंसाफ है मेरे भाई? आप बताओ। उसकी मिसाल ऐसी है, मैं जो दे रहा हूँ सुन। पहली बात, हेलो, हाँ बोलो भाई। हाँ, मैं अगर तू मुसलमान है, तेरे सामने अगर कोई आए, अल्लामा दल्लामा दहामा फहामा कोई आए, आकर के क्या है तेरी ईमान की हालत को जांचने के लिए तेरे से पूछे, क्या बोल करके पूछे कि तू बता कि अगर कोई ये पूछे कि राम मंदिर पे ऐसा कलमा पढ़ ले वैसा कलमा पढ़ ले, तो तू पढ़ लेता क्या? अगर सही ईमान वाला होता तो तू नहीं पढ़ता, इनकार कर देता ऐसा। तो इसी तरह ने, हेलो, बोलते जाओ। हाँ, तो ये वो मिसाल है उसकी। तो जैसा कि तू बाद वाली इबारत पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो उन्होंने अपने मुरीद से कहा था कि मेरे नाम का कलमा पढ़, उसके बाद वो क्या वजाहत करे उसको पढ़े ना। उसका जवाब उसकी बाद वाली इबारत में ही है। क्या जवाब है? पढ़ ले तो जिसका तूने अभी ये किया ना, दलील दिया ना जिस किताब के बारे में।
ہاں یہ بھائی یہ فرید فوائدیہ میں بھی ہے اور وہ غوثیہ میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں. اصل بات میرے بھائی کیا ہے پتہ ہے, بات آپ کی بالکل صحیح ہے. کوئی بھی مسلمان اگر ہوگا ٹھیک ہے, جتنا بھی بھائی وہ مطلب کمزور ایمان کا ہوگا, وہ کبھی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے نام کا کلمہ پڑھے گا. یہ تو بات واضح ہے. ہاں ہوگی. لیکن معین الدین چشتی صاحب نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو اپنا مرید بنا دیا. عقیدے کو جانچنے کے لیے تو ان کو جب اس آدمی نے جب چشتی کے نام کا کلمہ پڑھا تھا تو معین الدین چشتی صاحب کو اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ دیکھو تم میرے مرید تبھی بن سکتے ہو جب تم اس کلمے کو کبھی دوبارہ نہ پڑھو. لیکن انہوں نے کلمہ پڑھوا کے اس کو اپنا مرید بنا لیا اور بعد میں کہا, وہ بھی دوسری مطلب ایک کتاب میں آتا ہے, بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس کلمے کو اس لیے پڑھایا تاکہ تمہارا جو ایمان ہے, عقیدہ ہے, وہ میں چیک کر لوں کہ تم ختم نبوت کو مانتے ہو کہ نہیں, اللہ کے نبی کو آخری نبی اور رسول مانتے ہو کہ نہیں. تو یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ کسی کا عقیدہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے نام کا کلمہ پڑھانا یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ پیمانہ اللہ نے دیا یا اللہ کے نبی نے دیا؟ اللہ کے نبی نے بھائی, یہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک باندی کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے اس سے سوال کیا, اے اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس باندی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس باندی کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. تو عقیدے کا ٹیسٹ کرنے کے دو سوال ہیں کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ کے نبی کون ہے. یہ دو سوال ہیں عقیدے کے. کسی کو اپنا نام کا کلمہ پڑھا کے اس کا عقیدہ ٹیسٹ کرنا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے میرے بھائی. یہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی بھی بھائی پلٹ کے آپ کو اگر بول دے کہ ہاں میرے نام کا کلمہ پڑھو اور بھائی ہم کو آپ کا عقیدہ چیک کرنا ہے, تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تو یہی تو میں لوگوں کو بھائی میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں